لیڈی ڈیانا کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی المناک موت کو 24 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ برطانوی شہزادی آج بھی زندہ ہے۔ لیڈی ڈیانا کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ تو ظاہر ہے ملکہ الزبتھ کے بڑے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ چارلز سے ان کی شادی ہی تھی۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ لیڈی ڈیانا اور ان کی فیملی اس شادی سے قبل ملکہ الزبتھ کی پراپرٹی پر بنے ایک گھر میں رہتی تھی، اور لیڈی ڈیانا نے شادی سے قبل بطور نرسری ٹیچر اور بطور نینی بھی کام کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ لیڈی ڈیانا کی دادی اور نانی دونوں کسی زمانے میں ملکہ الزبتھ کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی رہی تھیں۔ لیڈی ڈیانا کا خاندان کئی دہائیوں سے برٹش اشرافیہ کا حصہ تھا، لیکن 1981 کے بعد لیڈی ڈیانا کی قسمت کی کایا پلٹی اور اس شہزادی نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آخر وہ اتنی مشہور کیوں تھی؟ شہزادی کی اصل وجہ شہرت صرف ولی عہد کی بیوی ہونا ہی تھی یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ شاہی خاندان کا اہم رکن ہونے کے باعث شہزادی کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ شہزادی کی وفات کیسے ہوئی اور اس کی ممکنہ وجوہات کیا تھیں؟ دوستو، لیڈی ڈیانا کا پیدائشی نام ڈیانا فرانسس اسپینسر تھا اور وہ 1 جولائی 1961 کو انگلینڈ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندان برطانوی شاہی خاندان کا پرانا وفادار تھا۔ یوں کہہ لیں کہ ان کا خاندان شاہی خاندان کے لیے کام کرتا۔ اس طرح دوستو، ظاہر ہے لیڈی ڈیانا کا بچپن شاہی خاندان کے بچوں جیسا شاندار نہیں تھا۔ البتہ ان کی فیملی کو برٹش نوبلٹی یعنی برٹش اشرافیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے خاص مراعات حاصل تھی۔ لیڈی ڈیانا کی شخصیت شروع ہی سے پرکشش تھی۔ ان کا ملکہ کے محل میں آنا جانا ہوتا تھا۔ البتہ جب لیڈی ڈیانا 7 برس کی ہوئی تو ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی اور وہ اپنے والد کے ہمراہ سوتیلی والدہ کے ساتھ رہنے لگی۔ انیس سو 1967 میں والدین کی علیحدگی کے بعد ڈیانا کی زندگی مشکل ہو گئی۔ وہ پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی، البتہ انہیں پیانو بجانے، تیراکی اور رقص کرنے کا شوق تھا۔ بلکہ ڈیانا بچپن میں ایک رقاصہ یعنی ڈانسر بننا چاہتی تھی۔ 16 برس کی عمر میں ڈیانا نے پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ لندن میں اپنی والدہ کے فلیٹ پر اپنی 2 دوستوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی۔ دوستوں، گزر بسر کے لیے ڈیانا نے ڈانس انسٹرکٹر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک سکول میں بطور اسسٹنٹ بھی کام کیا۔ انہوں نے مختلف پارٹیز میں میزبانی کر کے پیسے بھی کمائے اور کبھی دوسروں کے بچوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی آیا بھی بنی۔ دوستو، لیڈی ڈیانا شروع ہی سے لیڈی ڈیانا نہیں تھی، بلکہ 1975 میں جب ان کے والد کی ترقی ہوئی یعنی ان کا رینک بڑھا تو تب ڈیانا فرانسس کو لیڈی ڈیانا کہا جانے لگا۔ برطانیہ میں برٹش نوبلٹی میں شامل تمام خاندانوں کو خاص مراعات حاصل ہوتی ہیں اور ان فیملیز کے سربراہان کو کچھ ٹائٹلز اور رینکس دیے جاتے ہیں۔ لیڈی ڈیانا کے والد کو ارل اسپینسر کا رینک ملنے کی مناسبت ہی سے ڈیانا اور ان کی باقی 2 بہنوں کے نام کے ساتھ لیڈی کا ٹائٹل لگا دیا گیا۔ دوستو، پرنس چارلز کی ڈیانا سے پہلی ملاقات 1977 میں ایک تقریب کے دوران ہوئی۔ پرنس چارلز اس وقت 29 برس کے تھے، جبکہ لیڈی ڈیانا محض 16 برس کی تھی۔ دونوں کی منگنی فروری 1981 میں ہوئی۔ لیڈی ڈیانا کی منگنی کی انگوٹھی 18 کیرات کے سفید سونے سے بنائی گئی تھی۔ اس پر 12 کیرات کا ایک نیلم اور 14 ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت لیڈی ڈیانا ایک سکول میں ٹیچر اسسٹنٹ کی نوکری کر رہی تھی۔ منگنی کے بعد ظاہر ہے لیڈی ڈیانا نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ دوستو، لیڈی ڈیانا برطانوی شاہی خاندان کی پہلی دلہن تھیں جو اس خاندان کا حصہ بننے سے پہلے کوئی ملازمت کیا کرتی تھیں۔ جولائی 1981 میں ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی کی تقریب تاریخ کے اہم ترین ایونٹس میں سے ایک ہے۔ اس شادی کو فیری ٹیل ویڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ شہزادی کے شادی کے لباس کو 10,000 قیمتی پرلز سے سجایا گیا تھا اور اس شاندار لباس کی مالیت اس وقت 9,000 پاؤنڈز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن سکرینز پر اس جوڑے کی شادی کی تقریب کو 75 کروڑ لوگوں نے دیکھا، جبکہ 6 لاکھ افراد اس جوڑے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تقریب کے راستوں پر کھڑے ہوئے تھے۔
प्रिंस चार्ल्स से शादी के बाद लेडी डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन चुकी थी। इसके अलावा भी उन्हें 4 मुख्तलिफ टाइटल्स दिए गए। उन्हें बरतानवी शाही खानदान की तीसरी आला तरीन खातून होने का एजाज़ भी मिल चुका था। पहले और दूसरे नंबर पर मलका और मलका की वालदा थी। दोस्तों, बहसीत प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना को मुल्क की बहुत सी ऑफिशियल तकरीबात में शिरकत करना होती थी। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स करना और इनकी दावत पर मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करना भी प्रिंसेस के फ़राइज़ में शामिल था। इस दौरान उन्होंने कई ममालिक के दौरे किए। लेडी डायना ने 1991, 1996 और 97 में यानी 3 बार पाकिस्तान का दौरा भी किया। उनके आखिरी 2 दौरे इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम की फंडिंग के लिए किए गए थे। लेडी डायना को प्रिंसेस ऑफ पीपल्स यानी अवाम की शहजादी भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी वजह फलाही कामों में इनकी गैर मामूली दिलचस्पी थी। लोगों की बड़ी तादाद इनकी मद्दाह थी। ये आम सी बात है कि किसी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो और लोग इसे बहुत पसंद करते हो तो इसे फॉलो भी बहुत किया जाता है। लेडी डायना को इस बात का खूब अंदाज़ा था। 1988 में उन्होंने 191 मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की, जबकि 1991 में इन तकरीबात की तादाद 397 तक बढ़ गई। लेडी डायना ने बड़ी हद तक अपनी तवज्जो सेहत से मुतल्लिक फलाही कामों पर मरकूज कर रखी थी और वो कई फलाही तंजीमों से बराह रास्त मुंसलिक थी। लेडी डायना के कारनामों में सबसे अहम इनका एड्स के मरीजों से मिलना था। वो न सिर्फ इनको विजिट करती थी बल्कि इनसे हाथ भी मिलाती और गले भी इन्हें लगाती थी। शाही खानदान का हिस्सा होने की वजह से आवाम के लिए तो ये बात काफ़ी अजीब थी कि प्रिंसेस डायना एड्स के मरीजों को विजिट करती हैं। लोग एड्स के मरीजों के पास जाने और उन्हें छूने से कतराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि छूने से भी ये बीमारी फैलती है। प्रिंसेस डायना का ये दरबंदाना रवैया आवाम में बहुत मकबूल हुआ और उन्होंने लोगों के दिलों में घर कर लिया। दोस्तों, लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी सिर्फ 15 बरस ही चल पाई। इस दौरान लेडी डायना ने 2 बेटों को जन्म दिया, यानी प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। इस शादी के टूटने की कई एक वजूहात बताई जाती हैं। दोनों की उम्र में 12 साल का फ़र्क था। ये भी कहा जाता है कि लेडी डायना की तबीयत में शर्मीलापन शामिल था और वो पब्लिक के सामने आने और तस्वीर बनवाने से कतराती थी। डायना के शोहर प्रिंस चार्ल्स के कुछ और ख़वातीन से ताल्लुकात भी इस अलहदगी की वजह बताए जाते हैं, जिनकी वजह से मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा हुए। मलका एलिज़ाबेथ और डायना के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं थे और बाज़ ज़राए के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ डायना से नाराज़ रहती थीं और नहीं चाहती थीं कि डायना मीडिया को या लोगों को प्रिंस चार्ल्स के मुआशकों के बारे में बता दें। दोनों की अलहदगी अगस्त 1996 में हुई। अलबत्ता लेडी डायना को काफ़ी हद तक शाही प्रोटोकॉल ही मिलता रहा क्योंकि अब वो शाही ख़ानदान के वारसान की वालदा थी। अपनी वफ़ात तक वो मलका ही के एक अलग घर में रही। दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस चार्ल्स ने 2005 में अपनी एक दोस्त कैमिला पार्कर से शादी कर ली। उन दोनों के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से चल रहे थे और लेडी डायना इस बारे में पहले ही जान चुकी थी। प्रिंस चार्ल्स की दूसरी शादी रॉयल वेडिंग की तरह नहीं थी बल्कि ये बहुत सादा सी तकरीब थी। मलका एलिज़ाबेथ इस शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने इस तकरीब में शिरकत भी नहीं की। अलबत्ता ये शादी इनकी इजाज़त से हुई थी और ये दोनों अब तक साथ हैं। लेडी डायना की डॉक्टर हसनात से पहली मुलाकात 1995 में बरतानिया ही के एक अस्पताल में हुई। डॉक्टर हसनात एक ब्रिटिश पाकिस्तानी सर्जन थे। बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी की वजह भी डॉक्टर हसनात ही थे। कहा जाता है कि लेडी डायना ने पाकिस्तान का 3 बार दौरा इसीलिए किया कि उनको बताया गया कि डॉक्टर हसनात इमरान खान के दूर के कज़न हैं। लेडी डायना और डॉक्टर हसनात के माबैन जो कुछ भी था इसकी तस्दीक नहीं हो सकी और आम तौर पर इनको अफवाह ही समझा जाता है। डायना ने प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी के बाद कई इंटरव्यूज़ में एक ख़ास शख्स के मिलने का जिक्र किया था। इसे लेडी डायना का एक और दोस्त दूधी और फ़ायद ही समझा जाता रहा क्योंकि लेडी डायना अक्सर इसके साथ दिखाई देती थी। दोस्तों, शाही ख़ानदान का हिस्सा होने के बावजूद आज तक लेडी डायना की मौत को एक मौमा ही समझा जाता है।
31 अगस्त 1997 में पेरिस में एक कार हादसे में लेडी डियाना की मौत हो गई। उस वक्त वो महज 36 बरस की थी। उनके साथ उनके ड्राइवर और उनके एक दोस्त दाऊदी और फायद की भी डेथ हुई, जो उस वक्त कार में उनके साथ थे। इस हादसे में सिर्फ लेडी डियाना का बॉडीगार्ड ही जिंदा बच सका। दोस्तों, ये दरअसल आधी रात का वक्त था और लेडी डियाना गाड़ी में कहीं जा रही थी। गाड़ी ने एक टनल से गुजरना था। अब चूंकि बहुत से फोटोग्राफर्स हर वक्त इनका पीछा करते रहते थे, लिहाजा उस वक्त भी कुछ फोटोग्राफर्स इनकी गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। इनसे बचने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने नॉर्मल स्पीड के मुकाबले में गाड़ी की रफ्तार 2 गुना कर दी। इसीलिए गाड़ी बेकाबू होकर पहले तो टनल की दीवार से टकराई और फिर इसी टनल के एक पिलर से टकराई। ड्राइवर और दाऊदी और फायद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि लेडी डियाना को अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर वो जांबर ना हो सकी। हादसे की इब्तदाई तफ्तीश में कहा गया कि ड्राइवर उस वक्त नशे में था और ये हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। अलबत्ता दाऊदी और फायद के वालिद के मुताबिक ये सारा वाक़या पहले से प्लान था। दोस्तों, दाऊदी कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो एक मशहूर मिस्री फिल्म प्रोड्यूसर था और उसका बाप एक करोड़पति शख्स था। हैरत की बात यह है कि जब ये हादसा पेश आया, उस वक्त आसपास के सब सिक्योरिटी कैमरे बंद थे, लिहाजा कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ सकी। ये भी कहा जाता है कि हादसे के वक्त किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, सिवाय लेडी डियाना के बॉडीगार्ड ने, इसलिए उसे सिर्फ चंद चोटें ही आई थी। पूरी दुनिया में लेडी डियाना के चाहने वाले अचानक इनकी हादसाती मौत की खबर सुनकर सोगवार हो गए थे। बरतानिया में लोग शाही महल के बाहर जमा होना शुरू हुए और उनकी आखिरी रसूमात को 32 करोड़ लोगों ने टीवी स्क्रीन्स पर लाइव देखा। दोस्तों, जब यह हादसा पेश आया तो उस वक्त मलका अपने स्कॉटलैंड वाले महल में थी। बरतानिया में रवायत है कि जब किसी अहम शख्सियत की मौत हो जाए तो बकिंगम पैलेस पर लगाए गए परचम को सरनगू कर दिया जाता है। अब चूंकि उस वक्त मलका वहाँ थी ही नहीं, तो परचम को सरनगू नहीं किया गया, जिस पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया और उन्होंने एहतजाज के तौर पर बकिंगम पैलेस के सामने जमा होना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए मलका वापस आ गई और परचम को सरनगू भी किया और मलका ने लेडी डियाना की वफ़ात के हवाले से ताज़ियती बयान भी दिया। लेडी डियाना को बरतानवी शाही खानदान की सबसे हसीन खातून माना जाता है। आपने परफेक्ट फेस और गोल्डन रेशो जैसी टर्म्स का सुना होगा। कहा जाता है कि लेडी डियाना खूबसूरती की इन पैमाइशों पर काफ़ी हद तक पूरी उतरती थी। लेडी डियाना बाज़ औक़ात शाही प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर अवाम में घुल मिल जाती थी, बल्कि वो अपने दोनों बच्चों का तर्ज ज़िंदगी भी आम बच्चों वाला ही रखना चाहती थी। इसलिए मलका एलिज़ाबेथ और लेडी डियाना के माबैन ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं रहते थे। 1995 में BBC को दिए जाने वाला लेडी डियाना का एक इंटरव्यू बहुत मशहूर हुआ और मलका का इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। लेडी डियाना से पहले किसी भी बरतानवी शाही खानदान के ऑफिशियल ने इस किस्म का इंटरव्यू नहीं दिया था। लेडी डियाना ने इस इंटरव्यू में प्रिंस चार्ल्स के कमेला पार्कर के साथ अफेयर का जिक्र करने के साथ साथ अपने एक अफेयर का जिक्र भी किया था। इसके अलावा उन्होंने शादी के बाद पेश आने वाली मुश्किलात और ज़हनी दबाव का जिक्र भी किया। इस इंटरव्यू को 2 करोड़ लोगों ने देखा। लेडी डियाना की ज़िंदगी ही में उनकी एक बायोग्राफी लिखी गई। इस किताब को उनकी ऑटोबायोग्राफी भी समझा जाता है, क्योंकि ये किताब शाही खानदान ही के एक रिपोर्टर ने लिखी थी। दोस्तों, लेडी डियाना एक स्टाइल आइकॉन थी। उनके कपड़े, उनका मेकअप और हेयर स्टाइल पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता था। उनकी ज़िंदगी पर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। हाल ही में लंदन के केंसिंगटन पैलेस पर लेडी डियाना का मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। आज मलका एलिज़ाबेथ के बाद तख्त के वारिस मलका के बेटे प्रिंस चार्ल्स और उसके बाद लेडी डियाना और प्रिंस चार्ल्स के बड़े बेटे प्रिंस विलियम हैं। दोस्तों, लेडी डियाना को बरतानवी शाही खानदान की सबसे मकबूल शख्सियात में से एक माना जाता है। वो इस खानदान का हिस्सा तो ज़्यादा अरसा नहीं रही, अलबत्ता उनकी अवाम दोस्ती और इंसानियत से हमदर्दी ने उन्हें लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल बना दिया था।